Good morning, 8th class. So, we are on chapter number 6 of Geography Human Resource. And in this chapter, we will study that human beings are kind of asset for our generation, for the whole world. और हम अगर अपनी country की बात करें, पूरे world की बात करें, तो human beings are very important. They are basically the most important resource. Okay, resource क्या होता है? That is somewhere useful to us, that is that has some value, है ना? So here we will study that people are a nation's great resource because nature ने हमें बहुत सारे resources दिए हैं. Okay, but they will become or things will become resource only when human beings use it, है ना? And human beings understand how to use it. That is why human beings are the most important resource. Okay, now because it is the people with their demands and their abilities to turn them into resources. Okay, that is why human beings are also called as human resource. Okay, I suppose you all get it. Human resource is, that is why, the ultimate resource. Okay, and how does human beings बिकम रिसोर्स? सबसे पहली चीज है, या उसको और डेवलप करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज दे डेवलप द रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. When human beings are healthy, when human beings are educated, and when human beings are motivated, then they have that will, they have that potential, and they can really develop lot of resources. Okay, so basically if we invest on health and education of people, then it will later on गिव अस मोर प्रॉफिटेबल रिजल्ट. जैसे हम कोई भी काम करने से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ह्यूमन बींग्स में भी हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट अगर करें तो आगे जाके उसके बहुत पॉजिटिव अपने को इम्पैक्ट्स मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं. ओके, दैट इज वाई गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइक so many facilities for the students to get educated and working for their health and all, and overall कोशिश कर रहे हैं कि human resource development हो जाए. That is why they are providing so many schools etc, है ना? So as let us, because we are talking about government only, let us now have a look at these boxes. That government of India has a ministry especially for human resources development. This ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skill. This just shows how important people are as a resource for the country. तो इससे ही हमें पता चलता है एक अलग मिनिस्ट्री बनी है which actually helps in developing people's skill. people किस चीज में talented है, क्या उनकी skill है, उसको और improve करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसी से हमें पता चल जाता है कि human beings are really important. उसी तरीके से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, दिस वाज स्टार्टेड इन 2015. इनका एम था एटलीस्ट, मतलब इनका एम था 1 करोड़ इंडियन यूथ जो है उनको फ्रॉम 2016 टू 2020 के बीच में उनको हमें ट्रेन करना है, ताकि उनका एक एप्टीट्यूड बने, ताकि उनकी स्किल्स ऐसी डेवलप हो जाए, उनको ऐसी क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाए कि वो रेडी हो फॉर वर्किंग and becoming somebody who is adding profit or who is adding income, and that is why somewhere developing the whole country as well, है ना? because अगर human beings एक country में रहने वाले जो उसके citizens develop होंगे तो obviously directly जो है उनकी country भी develop होगी, directly indirectly, है ना? जैसे किसी की income होगी तो हमारी national income भी तो बढ़ेगी. so that is why the government is also working to bring changes in the kind of skills that human beings develop so that human resource development हो अपने इंडिया में भी. ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज होती क्या है, एंड वी नो कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री और एनी रिसोर्स ऑल्सो, तो इसीलिए हम इसके बारे में कुछ और चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए.
सबसे पहली चीज है कि ह्यूमन रिसोर्स लाइक एनी अदर रिसोर्स जो है इट इज ऑल्सो नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि हर एरिया में कि भाई हर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इतने ही लोग रहते हैं और ये कि सारे जो लोग हैं ना ये इक्वली एजुकेटेड है, सभी ग्रेजुएटेड है और सभी की एज भी सेम है, सभी का जेंडर भी सेम है। इट इज नॉट सो, बिकॉज this will vary depending upon area to area, country to country। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, वहाँ के लोगों की सोच के हिसाब से नंबर बढ़ेगा, कहीं पे कम होगा। और एजुकेशनल लेवल कंट्री की डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड होंगे, नहीं, एज लोगों की वेरिएंट होगी, जेंडर अलग अलग होंगे, कहीं पे मेल ज्यादा होंगे, कहीं पे फीमेल ज्यादा होंगी, है ना, और एज भी वेरी करेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये नंबर्स ये भी है कि स्टेशनरी नहीं रहते हैं, दैट मीन्स दे कीप ऑन चेंजिंग। समटाइम्स हो सकता है किसी एक एज के लोग ज्यादा है एक एरिया में, हो सकता है आफ्टर 10 years थिंग्स चेंज एंड दूसरे किसी एज के जो एज हमने ग्रुप बना रखे हैं, ओल्ड एज या सपोज यंग एज, मेच्योर एज, ऐसे करके जो है वो डिफरेंस हो जाए। तो दिस इज समथिंग विच इज ऑलवेज चेंजिंग विद टाइम। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। समवेयर ह्यूमन रिसोर्सेज आर a lot more as compared to the other areas। ठीक है, तो इतना I suppose is clear to you। So now let us move on to the next part। Next part which is again important topic that we need to understand here in this box, the students and teacher is basically just talking about कि कितना वेरिएंट है। जैसे हम बात करते हैं कि 500 चिल्ड्रन है मेरे स्कूल में, मेरी क्लास में 30 किड्स है, विलेज हैज 1000 पीपल, फिर देन पूरे इंडिया में अपने कितने सारे लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं। दिस इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग, ओके, अबाउट द पॉपुलेशन। So now when we move on to the next topic, it is distribution of population। Now what do we mean by distribution of population? That means the way in which people are spread across the world। यानी जो लोग हैं वो वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जो उनका एक पैटर्न होता है कि इस एरिया में ज्यादा होते हैं, ऐसे एरिया में कम होंगे। हमें पता है प्लेन एरिया, फर्टाइल एरिया, जहाँ पे क्लाइमेट अच्छी है, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू भाई बहुत हिली एरिया है, बहुत डेजर्ट एरिया है। तो यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, so that the way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution। okay, now इसी को अगर हम आगे पढ़े तो हम देखेंगे कि more than 90% of the world population lives in about 30% of the land surface। यानी जो अपने अर्थ का पूरा 100% का लैंड एरिया है उसमें से 9 जो पूरी पॉपुलेशन है हमारी 100%, उस पॉपुलेशन में से 90% जो लोग हैं वो सिर्फ 30% ऑफ लैंड सरफेस पे ही रहते हैं। यानी पूरे अर्थ के लैंड के 30% पे 90% लोग रहते हैं, बाकी एरिया में स्कैटर्ड है इधर उधर। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीमली अनइवन है। एक्सट्रीमली अनइवन मतलब कहीं तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और कहीं पे बहुत ज्यादा कम लोग रहते हैं। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो एक्सट्रीमली अनइवन है। ठीक है, some areas are very crowded, some are sparsely populated। स्पार्सली मतलब बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, क्राउडेड एरियाज बेसिकली कहाँ पे है? क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका, एंड वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई ऑल्टीट्यूड्स, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यानी हमें पता है ज्यादातर, एज यू कैन सी इन दिस बॉक्स एज वेल, यू कैन सी दिस mustard color men that they are showing are the number of people that live in Asia, कितने ज्यादा है ना। whereas अगर हम इसी की बात करें in terms of यूरोप में कितने लोग रहते हैं, then the purple color people who live in Africa, then the blue color is basically Central and South America, North America में we have these red kind of people, and then finally in Australia, और जो ओशियाना बोलते हैं हम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड्स है, उसमें सिर्फ इतना कम परसेंटेज। यानी ये क्या दिखा रहे हैं थ्रू दिस टेबल, दैट
things are very you can say नॉट प्रोपोर्शनल, अनइवन है बहुत, ठीक है। तो ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, ये हम इस हिसाब से परसेंटेज वाइज बात कर सकते हैं। तो इसमें अपने को ये समझना चाहिए कि जनरली जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, मतलब ऊंची वाली ऊंचाई, जो हाई लैटिट्यूड्स, इफ यू ऑल रिमेंबर वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस that if this is our earth, then we know that if this is our earth, then we know that equator is basically the line which passes through center of India, sorry, center of the earth, equator है ना 0 degree. Then we have tropic of Cancer which passes through center of India. Then here we have tropic of Capricorn. Then we have Arctic circle here. Then we have Antarctic circle here. Okay, then to the north we have here North Pole, and here we have South Pole. तो जो higher latitudes है वहाँ पे जो climatic conditions है ऊपर की तरफ, वो comparatively क्या होती है, बहुत ठंडी होती है। तो जब बहुत ठंडी होगी तो obviously क्या होगा, वहाँ पे people जो है इतना अच्छी कंडीशन नहीं होगी फॉर हैबिटेशन, सो वेरी फ्यू पीपल विल लिव देयर। ओके, सो इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड्स में, डेजर्ट्स में बहुत कम लोग रहते हैं, हाई माउंटेनियस एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में भी। और ज्यादातर लोग एज यू कैन सी इन दिस टेबल आल्सो एशिया में रहते हैं ज्यादातर, और बेसिकली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एटसेट्रा। एंड मेनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर देन साउथ ऑफ इक्वेटर। यानी जो हमने ये टेबल बनाया था, इसमें इक्वेटर जो है इसके ऊपर जो नॉर्दर्न साइड है वहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा लोग रहते हैं एज कंपेयर टू दी साउथ। ओके, यानी इफ यू अगेन लुक एट इट वेरी केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाले जो लैंड एरियाज है, एक तो लैंड ज्यादा अवेलेबल है, और उसके साथ ये भी है कि यहाँ पे लोग जो है दे लिव इन, यू कैन से, more number as compared to the people who live in the south of equator, ठीक है। so इसी को अगर हम देखें, almost 3/4 of world's people live in 2 continents of Asia and Africa. so clearly it means that around 3/4 of the world's people, ठीक है। यानी you all know what is 3/4? So basically 3/4, that is around 75% of the world's people live in 2 continents of Asia and Africa alone. Okay, and 60% of the world people stay in just 10 countries, and all of them basically have more than 100 million people. Okay, so 60% of the world's people stay in just 10 countries, all of them have more than 100 million people. We already know name a few of them, हमें पता है China and India are among these countries which are populated, okay, very much populated, ठीक है। and then we have this टेबल दैट इज गिवन अगेन, इसमें भी बेसिकली यही बताया हुआ है कितने बेसिकली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे अलग अलग कंट्रीज में है। वी नो चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान। तो चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये आर अमंग दी टॉप 5। ओके, सो बेसिकली इतना ये दिस इज मीन्स द पॉपुलेशन इज सो unevenly distributed. So with this we'll do only this much for today's class. In our next class we'll see the reason behind this uneven distribution of population, क्यों है, climatic condition है, और मतलब इसके अलावा लैंड कैसा है, कंट्री कैसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसी है, सोशल कल्चर चीजें क्या, ऐसे अलग अलग जगह पे कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा क्यों होती है, कहीं पे कम क्यों होती है, ये रीजंस जो है वी विल बी स्टडीइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टुडे बेसिकली हमने ये कर लिया कि ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे कितनी इंपॉर्टेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको भी अच्छे से पढ़ लिया कि कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है, और ज्यादातर अपने एशिया अफ्रीका में ज्यादा है और बाकी कंट्रीज में कंपैरेटिवली, बाकी जो कॉन्टिनेंट्स है उनमें कंपैरेटिवली कम है। Okay, so with this we wind up today's class. If you have any doubt regarding the topic that we have covered, just come back with your problems and your problems will be solved.